Now we are considering a case when zeta is positive. Okay, previously we have considered when zeta equals to 0. Now we are considering case when zeta is positive over here. Okay, so now as I have already evaluated the roots of a transfer function, so again we have a what, a cs by rs, which is nothing but a omega n square s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square, and the roots of the characteristic equation omega n s plus omega n square. So roots of the characteristic equation we have found out to be minus zeta omega n plus minus j times of omega n square root of 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये लोकेशन कैसा हो जाएगा पोल्स का, ये कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें कि आपका जो सिग्मा एक्सिस है, ये सिग्मा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन, और जो इसका जे ओमेगा एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. दिस इज माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ठीक है, तो ये कुछ मेरे पास इस तरीके की कंडीशंस आएंगी. ठीक है, और इसी टर्म को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओमेगा डी से, ठीक है, सपोज आई हैव वन मोर सिंबल ओमेगा डी ओवर हियर, so I end up with writing every time omega n root square root of 1 minus omega 1 minus zeta square. तो मेरे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और since this term is constant, okay, and we have omega n which represents the frequency of oscillations, so omega t term which is dependent on the value of zeta, so we consider this as nothing but a frequency of damped oscillations. Okay, damped oscillation frequency, so this represents nothing but a frequency of a damped oscillations. So now for this particular system, suppose if I want to find a time constant, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, टाउ विच इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट पोल्स. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो पोल्स आ रहे हैं. ठीक है, और इन दोनों पोल के मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं इसका रियल पार्ट कंसीडर करता हूँ तो इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा, तो minus of zeta omega n. Okay, so tau is nothing but a minus of 1 by real part of dominant pole. It is nothing but a 1 by zeta omega n. Okay, so time constant for a zeta greater than 0 system is nothing but a 1 by zeta omega n. ठीक है, now again for this particular system I am considering again a 3 inputs. Okay, impulse, unit step, and then we try to find out the conditions corresponding to those particular input. So first is what, or again zeta greater than 0, we have the value of s which is nothing but a minus zeta omega n plus minus j times of omega d. Okay, so first input I am considering is what, impulse input. Okay, so we have rt which is equals to del t, so rs is nothing but a 1 over here. Okay, so now we have cs by rs which is omega n square s square plus 2 zeta omega n plus omega n square. Okay, so अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी एस इज नथिंग बट अ ओमेगा एन स्क्वायर. अब देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग
रूट्स ये हैं, ठीक है। ये जो भी इक्वेशन है इसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने कंसीडर किया था और उसके करस्पॉन्डिंग हमने पोल्स की वैल्यू ये फाइंड की थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, या चलो हम इसको सीधा भी रहने देते हैं इसी तरीके से, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा सीधा आपके पास, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे इसका क्या है, टाइम डोमेन एनालिसिस करना है, सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ some known format. Okay, so I rewrite this particular equation. So s square plus 2 zeta omega n s, and I am adding over here what one term, zeta square omega n square plus ओमेगा एन स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। देखो, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या लिखा हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस रिप्रेजेंट्स ए, दिस रिप्रेजेंट्स बी। ओके, तो अगर मैं इसमें बी स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा सीधा सीधा। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स ए, दिस रिप्रेजेंट्स बी। ओके, एंड ये क्या है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ठीक है। तो ये ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिंस आई हैव added this particular term, so I have subtracted, so when these both terms cancel out, so we have end up with this particular expression only. तो आप इसको देखो, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो, इसमें मैंने क्या किया, ओमेगा एन और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके से लिखने का पर्पस क्या है, अगेन अगर मैं साइन ऑफ बी टी को कंसीडर करता हूं और इसका लाप्लास फाइंड करता हूं तो ये क्या होता है, बी डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर हियर। ओके, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ से एक ओमेगा एन बाहर लेंगे या अलग से कंसीडर करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 - जीटा स्क्वायर से, देन आई मल्टीप्लाइड विद 1 - जीटा स्क्वायर ओवर हियर, एंड वी हैव एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - जीटा, ये एक्सप्रेशन आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इसी तरीके से अगर मैं लाप्लास ऑफ e टू द पावर -at साइन ऑफ bt कैलकुलेट करता हूं तो क्या आता है, b डिवाइड बाय एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे यार सपोज a की वैल्यू क्या है आपके पास, डोंट कंफ्यूज विद दिस पर्टिकुलर a एंड b। ओके, दैट आई हैव ओनली टेकन for your reference. Okay, and that only implies that we are making a plus b whole square formula over here. Okay, so you can see we have a s plus zeta omega n. Okay, so in place of this particular value we have zeta omega n square, zeta omega n. So I rewrite this particular equation as c of s, which is nothing but a omega n square root of 1 minus zeta square. Okay, so this is nothing but, because of s plus zeta omega n we have one term e to the power minus zeta omega n t over here, then we have a sine of omega n square root of 1 minus zeta square times of t.
ये समझ में आता है सभी को? ये समझ में आता है सभी को? इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट है? आई हैव written it over here wrongly. This is a time domain equation. Okay, तो ये समझ में आता है सभी को? Okay, so I have converted this particular thing in time domain as c of t is Laplace inverse of c of s. Okay, so c of t is nothing but a omega n square root of 1 minus zeta square e to the power minus zeta omega n t sine of omega n square root of 1 minus zeta square t. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, देन वी हैव ओमेगा एन which is square root multiplied with a square root of 1 minus zeta square and this particular term. Okay, okay, so I forget to write 1 omega n over here. Okay, so don't confuse. तो अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो कैसा होएगा? So this is t, this is c of t over here. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन है. ओके, एंड साइन अगेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट अ +1 to -1 and it is multiplied with this particular value omega n square root of 1 minus zeta square. Okay, so this particular sign maximum minimum value when multiplied this thing, so we have over here what, omega n square root of 1 minus zeta square. इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा n square root of 1 minus zeta square with minus sign. Okay, apart from that we have one more multiplier over here which is e to the power minus zeta omega n. So now you can see this is what, this is going something like this. Okay, so if I represent a sine signal, so we have what, so now you can see for zeta greater than 0. Okay, for zeta greater than 0 we have a oscillations over here. Okay, which die out after some time t. Okay, so at time t equals to infinite these particular oscillations would get die out. Okay, and we call these particular oscillations as a damped oscillations. Okay, these are called as what, a damped oscillation. So this equation is representing minus zeta omega n t. So because of sine we have this particular values over here. Okay, which is representing in plus and minus way. तो यहां तक समझ में आ रहा है, इसका बिहेवियर समझ में आ रहा है, इसका बिहेवियर सभी को समझ में आ रहा है. ओके, एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. तो ये बिहेवियर सभी को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. तो दीज आर कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस व्हेन वी अप्लाइड अ इम्पल्स इनपुट ओवर हियर. ठीक है.